Hello dear students, how are you doing? Let's maintain the same pace of studying and learning which we are doing for several days, and in the same series of continuation I'm here with the same topic, that is present tense, and in that we are going to read present perfect tense. So basically we have to go through four basic points which we have to keep in mind while uh, writing the sentence in present perfect tense. That what are the 4 points, what are those 4 points that we have to always keep in mind, that this sentence should be in present perfect tense. Okay, and let me tell you, I'll tell you discrimination between difference between present perfect tense and past indefinite tense, because you can find similarities between these two tenses, because these two tenses talk about the actions that has happened in the past. Okay, but how can we differentiate between these two? Let's start. Okay, I'll try to explain this in a curtailed way. Okay, so basically the first major point which is given is to express an action that has recently completed. Okay, so here we talk about the action which has just completed. For that we use some sort of words like recently, just, now. Okay, and some more words are there what we use in present perfect tense, that is given in the notes. You can go through that. Okay, you can take example, I have just received the letter. Like, you have recently got this letter. We have won the match. Okay, so we have won the match. I'm talking about, it was, if I talk about that I won this match in 1987. So if I aspire to write or tell any certain date, certain time, so in that condition we won't use we won't use present perfect tense. Okay, if we have to mention date, if we have to mention time, in that condition we will have to use present indefinite tense. Okay, is that clear? Okay, let's move forward. Next one point is given to describe an action the time of which is not given. Okay, the same I told you earlier also. If I have to say that train has steamed in, that they have left for Australia. Okay, if I'm telling that कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल चुके हैं, ठीक है, लेकिन मैंने टाइम यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आई डिडंट मेंशन द टाइम. सो इन दैट कंडीशन यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं, सो दैट इज़ करेक्ट. बट इफ़ वी हैव टू मेंशन टाइमिंग ऑल्सो, इन दैट कंडीशन व्हाट विल बी डू? अगर हमें टाइमिंग भी मेंशन करनी होगी तो उस कंडीशन में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे. ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि वो 5 बजे कश्मीर के लिए निकले, ठीक है, या जा चुके हैं, तो या ऑस्ट्रेलिया के लिए जा चुके हैं, तो हम कैसे बोलेंगे? दे लेफ्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया एट 5. लेकिन अगर हमें बोलना हो कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल चुके हैं या वो ऑस्ट्रेलिया के लिए निकले, सो इन दैट कंडीशन हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम टाइमिंग मेंशन कर नहीं रहे. व्हेन वी डोंट हैव टू मेंशन टाइमिंग इन दैट कंडीशन वी कैन से प्रेजेंट, कैन से दैट सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज़ टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्सपीरियंस. अगर आपको कोई पास्ट एक्सपीरियंस बताना हो कि ये चीज़ आपने एक्सपीरियंस की है, या यानी अगर आप किससे बता रहे हो कि हम तो कश्मीर जा चुके हैं, सो दैट वाज योर एक्सपीरियंस. ठीक है, हम उस स्कूल में पढ़ा चुके हैं, सो ये भी आपका एक्सपीरियंस है. ठीक है, हम उस स्कूल से पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइम पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे एक्शन पे फोकस कर रहे हो जो कि एक्सपीरियंस को डिनोट कर रहा है, किसी चीज़ का एक्सपीरियंस बता रहा है. ठीक है, आई हैव सीन दिस पिक्चर सेवरल टाइम्स, तो ये आपका एक्सपीरियंस है. ठीक है, ये हो चुका है. आपको टाइम से मतलब नहीं है, आप बस बता रहे हो आपका मेन टारगेट क्या, आपका काम बताना है, टारगेट. ठीक है, सो आपको ये किस में डिनोट करना होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. जो आपको टाइमिंग से कोई मतलब नहीं है, बस मतलब किससे कि काम हुआ कि नहीं. दैट वॉज द मेन टारगेट, टाइमिंग इज़ नॉट द टारगेट. ठीक है, आप कश्मीर कब गए या आप कश्मीर गए हैं, इसमें बहुत डिफरेंस होता है. ठीक है, अगर हम कब गए की बात पूछ रहे हैं तब आप उसको पास्ट इंडेफिनिट बताओगे. अगर हम बोलें व्हेन डिड यू गो टू कश्मीर, सो आई वेंट कश्मीर इन 1968, लाइक दिस. लेकिन अगर हम बोलें कि हैव यू गॉन टू कश्मीर, क्या आप कभी कश्मीर गए हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, तब आप बोलोगे येस आई हैव गॉन टू कश्मीर.
ठीक है, उस कंडीशन में आपको ऐसे बोलना है। तो अब एक्सपीरियंस की बात करें, जो आपका एक्शन मेन पर्पस है बताना पास्ट का, ठीक है, दोनों ही पास्ट में चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, जब हम टाइमिंग की बात करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में कर रहे हैं, ऐसे ही हम येस्टरडे की बात को हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बोलेंगे। लाइक अगर हमें बोलना हो कि मैंने आपको कल नोट्स दिया था, तो आई वॉन्ट से दैट आई हैव गिवन यू नोट्स येस्टरडे, दैट विल बी रॉन्ग, ये गलत है, कम्प्लीटली रॉन्ग है, ठीक है। आई विल से दैट आई गेव यू नोट्स ऑफ दिस चैप्टर येस्टरडे, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। इज दैट क्लियर? तो जब भी टाइमिंग मेंशन कर रहे हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कभी यूज़ हो ही नहीं सकता है, अगर आपने किया तो वो गलत है कम्प्लीटली, वेदर इन कॉन्वर्सेशन और इन ग्रामर। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ लास्ट वन इज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड स्टिल कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कोई भी ऐसा एक्शन, देखिए ये जो पॉइंट है, दिस वन पॉइंट इज क्वाइट सिमिलर टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बिकॉज दीज टू पॉइंट्स आर सिमिलर। ओके, यही एक पॉइंट है जिसके बारे में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में पढ़ते हैं या पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत सिमिलर पॉइंट है और ये पूरा टेंस है, ये वाला पॉइंट जो है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें हम इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा पहले मैंने बोला था कि आपको टाइमिंग मेंशन नहीं करनी है। ठीक है, अब हम जो सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं इसमें आप टाइमिंग मेंशन करोगे कि लाइक ये काम 4 साल से हो रहा है, ये काम इतने दिन से हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि वो काम अभी भी कंटिन्यू है, वो फिनिश नहीं हुआ है पास्ट में। ठीक है, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और ख़त्म हो गया और उसका टाइम दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करोगे। वो ख़त्म हो चुका है तब पास्ट इंडेफिनिट यूज़ कर रहे हो टाइम के साथ। ठीक है, बट अगर टाइम आपका दिया है, किस कंडीशन में, आपका पास में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, इन दैट कंडीशन आपको क्या करना है, इन दैट कंडीशन आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है, क्योंकि वो एक्शन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। लाइक अगर आप कह रहे हो कि मैं 5 साल से इस स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तो अभी भी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अगर हमें बोलना हो कि मैंने इस स्कूल में 5 साल पढ़ाया, ठीक है, ये भी क्या है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में ही डिनोट होगा। ठीक है, अगर आपको बोलना हो कि मैंने इस स्कूल में 1995 में पढ़ाया, उस कंडीशन है पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर आप बोलो कि मैं इस स्कूल में 1995 से पढ़ा रही हूँ, जो मैंने बोला पास्ट वाला सेंटेंस प्रीवियस वन कि मैंने पढ़ाया, तो वो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही फिनिश हो गया। लेकिन अभी जो हम बोल रहे हैं कि हम 1995 से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो मीन्स वो एक्शन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, अभी भी हम पढ़ा रहे हैं। क्लियर? यस, आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दैट पॉइंट दैट लाइक ही हैज़ वर्कड इन दिस स्कूल फॉर 5 years, मीन्स इज स्टिल वर्किंग, दैट पर्सन इज स्टिल वर्किंग इन दैट स्कूल, वो अभी भी काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप बोलो कि हम उससे मंडे को मिले, यानी आप गए मिलने, मिल लिया आपने, काम फिनिश पास्ट में। ठीक है, सो आई मेट हिम ऑन मंडे। ठीक है, यहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे आई हैव मेट हिम ऑन मंडे, दैट विल बी रॉन्ग। इज दैट क्लियर? पास्ट की बात है, पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और पास्ट में फिनिश हुआ और टाइमिंग दी हुई, उस कंडीशन में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। लेकिन अगर कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज़ करोगे, उस कंडीशन में आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करोगे या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करोगे। ठीक है, लाइक आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे। ठीक है, यानी मंडे से उसको नहीं देखा है, यानी अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, and there is one more thing that you have to remember, that you don't have to use adverb of time denoting the past tense in present perfect tense. ठीक है, again and again I am just repeating it. Clear? I hope you would have got it, and hopefully this is a complete topic which I try to explain with the best of my effort, which will help you for better understanding. Thank you so much for giving me your precious time. Take care.